Stationary. Yeah, in physics it is at rest, something at rest. And the word electro is which is related to electrons. Basically this term electro is derived from the term electron. तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी कुछ होगा that will be electro. Okay, so electrostatics. Now in this unit what we will study basically, we will study in this unit we will discuss about the effects produced by stationary charges. You can note it down. I'll just write along with it so that you can note it down in your notebooks. Otherwise this is being recorded also. You can see this symbol over here, red color. So I'll share a video with you all. So if you wish to see it again, you can just go through it again also. Okay. Now, in this chapter, we'll discuss about the effects produced by the stationary charges. What do you mean by a charge? If I ask you to define a charge, what do you mean by a charge? Whatever you know, just feel free to speak. Don't hesitate कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा. No problem at all. हो सकता है सही भी हो. If you don't know, then quickly say कि we don't know, sir. Okay, so that I can proceed quickly. I don't know. Okay. It is a property of an object. It is a property of an object. Property means जैसे हम बोलते हैं ना गुण or characteristic. That is a characteristic of an object. Now what happens due to this characteristic? जब एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है तो उसमें कैसे पता लगता है कि चार्ज हो गया? What change do you observe in that object? जैसे तुम Attraction. Yeah, very good. So it is a property of an object by virtue of which, yeah, due to which an object exert a force of attraction or repulsion. जैसे तुमने वो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जैसे हम स्केल को रब करते हैं और पेपर बिट्स के पास लेके जाते हैं, तो व्हाट हैपन टू दैट? इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज पेपर बिट्स. और अट्रैक्ट नहीं करता है तो तुम क्या करते हो? तुम फिर से हाँ, तुम फिर से स्केल को रब करते हो बालों से. फिर तुम इसके पेपर बिट्स के पास लेके आते हो. जब तक वो अट्रैक्ट नहीं करता तब तक तुम उस स्केल को अपने बालों से रगड़ते हो. That means you actually rub the scale with your hairs and due to friction, the scale attains a charge. और कब पता लगता है कि स्केल चार्ज हो गया? जब वो पेपर बिट्स को अट्रैक्ट कर लेता है. तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसी वो किसी ऑब्जेक्ट में आती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करता है. अब चार्ज अटेन कैसे होता है? हाउ डू वी अटेन और एन ऑब्जेक्ट अटेन अ चार्ज? एक ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है? जब उसमें एनर्जी नहीं, either by losing or gaining electrons. एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है.
ठीक है। Yes, sir. अब जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन Negative. लूज होते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? Positive. पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव को नाम देते हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन मतलब एक हमने सिंबॉलिक तरीका ढूंढ लिया ये एक्सप्रेस करने का कि हु हैज लॉस्ट एंड हु हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज इफ सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन्स तो हम सोडियम के ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं। इफ क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के ऊपर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। द मोमेंट वी symbolize it with a negative sign, we just understand that the chlorine has gained electrons. And the moment we put a positive sign on sodium, it's a symbolical. That's why it is known as sign conventions. Or in lower classes, you must have studied the types of charges. So one is the negative charge and one is the positive charge. Okay. So Yes, it is only electron which move from one object to another object. जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करता है। तो अब जो वो एनर्जी की बात आ रही थी, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रॉन्स को अपना शेल चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। yes, sir. तो हम क्या करते हैं, रब करने से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जैसे उसको एनर्जी मिलती है इट कम्स आउट ऑफ इट्स शेल। तो इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से बाहर निकालती है? Ionization. आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now suppose if a charge is kept at a place. अब जब मैं एक चार्ज बोलूंगा तो इसका मतलब मैं जनरली एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूंगा। हम हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं जब भी हम कोई थियोरी या थ्योरम या कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। ठीक है। Now suppose there is a positive charge kept here. If you bring another positive charge near it, what will happen to this? Let us say this is Q1 and this is Q2. So Q is basically small q or capital Q is a symbol of charge. चार्ज का जो सिंबल है उसको हम स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और चार्ज की यूनिट क्या है? Coulomb. Coulomb. How can we define 1 coulomb? एक कूलम चार्ज डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इसके डेफिनेशन के दो तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? How much is the charge on one? 6.241 into 10 की power 18. Okay. 1 coulomb. I guess. No, it's okay. 1 coulomb constitute. Understand the terms and the meaning of the statement. If you're not be able to understand, please let me know. 1 coulomb constitute 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. कि जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं? 6.25.
हाँ, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर when you keep these number of electrons at one place, then the charge at that place will be called as 1 coulomb of amount. ध्यान से समझना, नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? तो 1 कूलम का मतलब हो गया जब इतने इलेक्ट्रॉन्स तुम एक जगह रख दोगे तो वो 1 कूलम चार्ज होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है अब तुम्हें याद आएगा शायद। 1.6 into 10 to the power minus 11. 19. यस, -19 कूलम। इसका मतलब पता है क्या हुआ अगर तुम इसको वैसे लिखोगे तो? अच्छा, ये क्लास 40 मिनट्स के बाद एकदम क्लोज हो जाएगी, मैं फिर से इसको स्टार्ट करूंगा। श्रेया इज फेसिंग अ प्रॉब्लम आई गेस। ओके, ठीक है, क्योंकि जूम पे एक क्लास 40 मिनट की ही प्लान होती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ डेसिमल है ना 1 से, तो इसके बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 0.00006 कूलम्स, 16 कूलम्स, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ये बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? Can you guess how less it is? Sir, very less. Very less. If you remember 10 to the power minus 18 in grade 9, which we used to study in terms of metric units, 10 to the power minus 15 was 1 Fermi. Okay, so this much is the amount of charge. अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये देखो, after 10 minutes only, then I'll restart and share a new code with you. Okay? Okay, sir. Okay. जब मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका क्या मतलब होता है? Na पॉजिटिव, कोई बता सकता है? ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसको समझ लो नहीं तो तुम हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। देखो, इसका मतलब ये होता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो तुमने यहाँ पे सिंबॉलिकली दिखा दिया 1+। 1+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ये किस टर्म्स में है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Sir, can you repeat? yeah. If I represent Na1+ or Mg2+, what is the meaning of Na1+? That one electron is lost. तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो 1+ आता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो 2+, और तीन इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो 3+. तो ये जो हम एटम्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं 3+, 1+, 2+ या 1 - 2-, ये हम करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। लेकिन अगर तुमसे ये पूछे कोई कि सोडियम ने चार्ज कितना लूज किया, तो तुम कितना बताओगे?
तो इतना बताओगे। ये बात समझ में आई जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ? यस सर। कि जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि चार्ज कितना लॉस हुआ या गेन हुआ तो तुम कूलम्स में बताओगे। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो चार्ज कितना लूज हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो चार्ज कितना लूज हुआ? 2 into 1.6। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका मतलब क्या समझ में आया तुम्हें? देखो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नंबर नंबर ऑफ। ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19? चार्ज। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो number of electrons multiply by the charge on 1 electron is giving you what? Total चार्ज। charge। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज लॉस्ट और गेन्ड is equal to number of the particles lost or gained and charge on one particle. तो Q is equal to NE। नहीं समझ आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। Have you understood or not? Yes. Someone was talking in between saying something. Yeah, is it clear to all of us? Yes sir। Yes, sir. Okay. So quantization of principle says that the total charge is the integral multiple of। क्या ऐसा हो सकता है कि n की वैल्यू 1/2 हो जाए? Is it possible? या 3/4 हो जाए या 4/3 हो जाए, 5/2 हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? या 1.5 हो जाए, 1.7 हो जाए? नो सर। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या आधा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? नहीं। नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज या गेन होंगे वो किस में होंगे? कंप्लीट नंबर्स में होंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन पार्टिकल। ठीक है, अब सपोज एक क्वेश्चन का तुम जवाब देना। इज दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल टू लूज? क्या इतना चार्ज लूज हो सकता है बाय एन ऑब्जेक्ट? Yes, sir. ओके, अगर इतना चार्ज लूज हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will an object lose to lose this much amount of charge? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू N इंटू E। तो Q तो है 3.5 इंटू 10⁻⁻19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट ने टोटल इतना चार्ज लूज किया, तो ये बताओ उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? तो हमें n कैलकुलेट करना है। तो n आ गया 3.5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 35/16। 16 के टेबल में 35 आता है? No, sir.
कितनी वैल्यू आई 35 को 16 से डिवाइड करके? 16 2 से 32, 30, 16 1 से 16, 140, 16 8 से 128. Is it possible to lose 2.18 electrons? No. No. So this much amount of charge cannot be lose or gain. तो तुम्हें याद रखना है कि जो टोटल चार्ज लूज या गेन होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में होगा, मतलब इस n की वैल्यू कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शंस में नहीं आएगी। अगर डेसिमल और फ्रैक्शंस में आती है तो उतना चार्ज ना तो लूज हो सकता है और ना ही गेन हो सकता है। Am I clear to all of you? Yes, sir. Okay, so this is what the principle of quantization says. So I'm just connecting it once again, and charge and quantization of charge says that the total charge is the integral multiple of the fundamental charge, that is 1 electron, the smallest independent charge which can exist, 1.6 into 10 to the minus 19. Okay, now the next part, let us move on to. Suppose if I'll keep a positive charge here, denoted by Q1, another charge positive denoted by Q2. What will happen to this positive charge Q2 due to Q1? Q2 को क्या Q1 कुछ करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा? रिपेल करेगा हमेशा? हाँ, हमेशा ही करेगा, दोनों सेम चार्ज है ना, तो दोनों सेम चार्ज है तो ऑब्वियसली वो रिपेल करेगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज Q का एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया होगा। इन्फ्लुएंसिंग एरिया मतलब जहां इसका इन्फ्लुएंस होगा। मान लो इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंसिंग एरिया यहां तक का है, ये इसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया है, ये क्या है? अगर ये इसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया है तो क्या अब Q1 Q2 को इन्फ्लुएंस करेगा? नो, नहीं करेगा। तो जो उसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक चार्ज का प्रभाव क्षेत्र होता है, the area in which a charge exerts an influence. If any other charge comes under this area, in this area, then it exerts a force, and if the charge is beyond this point, then it will not exert any force on it. And this influencing area around the charge is called electric field. Okay, now suppose if we have two charges, Q1, Q2, and this is Q1, placed at a certain distance R, but within the influencing area of Q2 and Q1, मतलब दोनों के influencing areas आपस में वो करते हैं कि you can say Q1 is placed in the electric field of Q2
और Q2 is placed in the electric field of Q1. तो जब हम ऐसा बोलेंगे, ऐसी स्टेटमेंट बोलेंगे that Q1 is placed in the electric field of Q2, तो इसका मतलब Q1 Q2 के इन्फ्लुएंसिंग रीजन में है या नहीं है? है। तो अगर Q1 Q2 के इन्फ्लुएंसिंग रीजन में है तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। यस। कितनी फोर्स लगाएगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला फैक्टर जो है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस। वेरी गुड। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी या डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स कम होगी? ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा मतलब अगर ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है और तुम इसको बढ़ा के 20 मीटर कर देते हो तो फोर्स 20 मीटर के साथ बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज होगी। फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। शायद, हाँ। तो अगर मान लो इसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया 21 मीटर पे है, 21 मीटर के बाद ये इन्फ्लुएंस नहीं करता। Q2 जो है वो 21 मीटर तक इन्फ्लुएंस करता है। तुमने एक चार्ज को 21 मीटर पे रखा और एक चार्ज को 15 मीटर पे रखा, तो किसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी? Q1 पे फोर्स ज्यादा लगेगी या Q3 पे, या दोनों पे बराबर लगेगी? पता नहीं। देखो, चार्जेस जितने पास होते हैं, मैग्नेट्स को क्या करते हैं, मैग्नेट्स तुम जितने ज्यादा पास लेके आते हो उतनी उनकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाती है ना। यस। वैसा ही चार्जेस के साथ होता है, जितना चार्जेस को तुम क्लोज लेके आओगे उनके बीच की रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी या कम? कम। ज्यादा। जितने चार्जेस पास पास रखे होंगे उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो ज्यादा होगी, और जितने इंक्रीज हो चार्जेस जाएगी। दूर दूर होंगे उनके बीच की फोर्स डिक्रीज होगी। या तो F1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन F2। ये दो सिचुएशंस मैंने तुम्हें यहाँ दी हैं, A और B, जिसमें चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखा और यहाँ चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखा है। तो इन दोनों सिचुएशंस में जो सेकंड सिचुएशन है उसकी फोर्स फर्स्ट सिचुएशन के कंपैरिजन में कम होगी, वीक होगी। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब ग्रेड 11 में तुमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा और ग्रेड 9 में, यस सर। तो उसमें ग्रेविटेशन लॉ है ना, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। यस सर। The force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the objects. Okay, so this is a space around the charge. Now, suppose if we have two charges, again I'm taking the same type of an example, Q2 and Q1, they are placed at certain distance r from each other. But अब Q1 और Q2 एक दूसरे के इन्फ्लुएंसिंग एरिया में हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंसिंग रीजन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो कौन सी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की? रिपल्शन की। रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। कितनी लगाएगा? ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब ये जनरलाइज्ड वैल्यू है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कितनी फोर्स लगेगी। अभी तो हमने फैक्टर्स कंसीडर किए हैं कि डिस्टेंस r है। अब अगर मैं r को, हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मैं r को बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज द गैप बिटवीन दीज टू चार्जेस, will the force decrease or the force will also increase? अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं चार्जेस के बीच में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो ये 10 मीटर है, मैंने इसको बढ़ा के 20 मीटर कर दिया, ये 21 मीटर कर दिया, तो फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? तो फोर्स कम होगी। हाँ, तो इसका हमने एग्जांपल लिया ये A एंड B।
ए में चार्जेस इतने डिस्टेंस पे रखे हैं और बी में चार्जेस इतने डिस्टेंस पे रखे हैं। तो बी के लिए फोर्स है एफ बी और ए के लिए फोर्स है एफ ए। तो एफ ए is greater than FB because the distance RA is less than RB। तो इससे तुम्हें क्या पता लगा कि जब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा होती है, और जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फोर्स कम होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि F is inversely proportional to the square of the distance। ये फर्स्ट आ गया। दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करती है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जितनी चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यू कैन नोट इट डाउन। मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, वैल्यू लिख देता हूं चलो मैं। मोर इज द वैल्यू ऑफ द चार्जेस। चार्ज कौन सी यूनिट में मेजर होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19। वो तो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। कूलम। तो मोर इज द वैल्यू ऑफ द चार्जेस, मोर इज द फोर्स। ठीक है। यस सर। तो अगर हम इन दोनों को कलेक्टिवली लिख दें एक साथ, तो क्या लिखेंगे? F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना दोनों को कलेक्टिवली? यस सर। ठीक है। तो हमने दो फैक्टर पढ़े। कौन कौन से फैक्टर पढ़े? समीक्षा बताएगी। पहला फैक्टर क्या था जो फोर्स को अफेक्ट करता है? सर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। या दूसरा सुनिधि बताएगी। सेकंड फैक्टर इज force is directly proportional to magnitude between two charges। not between two charges, product of the magnitude of the two charges। yes sir। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो जितनी चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्वियसली प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, yes sir। तो फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। अब थर्ड फैक्टर, तीसरा फैक्टर क्या है जो फोर्स को मतलब अफेक्ट करता है? तीसरा फैक्टर है इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम। अगर इनके बीच में एयर है मान लो, तो फोर्स मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इनके बीच में तुमने पेपर रख दिया या ग्लास रख दिया या वाटर रख दिया या कोई और मीडियम रख दिया दो चार्जेस के बीच में, तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी इनके बीच की। आई होप आई एम क्लियर। द थर्ड फैक्टर इज medium between the medium between the median between the charges। medium between the charges। We are just three only so far. So who is missing? Chalo, no problem. Okay, third factor is the medium between the charges. So how do we express it now completely? We can write it as F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इफ यू रिमेंबर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बात पता है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू क्या है? बेसिकली इसकी वैल्यू है ये 1/4πε0, और न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी 9 × 10⁹। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट f इज इक्वल टू 1/4πε0। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। यहाँ पे Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला दिया ये कूलम ने दिया, इसको कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं या कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब मान लो हम दो चार्जेस कंसिडर करते हैं। एक चार्ज है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, 3 कूलम, और एक चार्ज है मान लो 4.5 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो ये बताओ इनके बीच में फोर्स कितनी होगी? सबसे पहले कौन सी फोर्स होगी? फोर्स के यहाँ पे दो टाइप है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव। Repulsive. और कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमने? 1/4 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब मैंने इसके बीच का मीडियम नहीं बताया तुम्हें, तो जब मीडियम नहीं गिवन हो, मान लो क्वेश्चन में दिया है कि दो चार्जेस हैं, इतने डिस्टेंस पर रखे हैं, बताओ कितनी फोर्स है। द मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, तो फिर तुम कौन सा मीडियम एज्यूम करोगे? 9 × 10⁻⁹ या 9 × 9 10, यस गुड। तो हम इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, और इनके बीच का जो मीडियम हम एज्यूम करेंगे वो एयर या वैक्यूम। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं, 3 × 4.5 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, 100. 100 हो जाएगा। पक्का 100 होगा? Yes, sir. सेंटीमीटर में है ये, 100. इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां तुम लिखोगे 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या करना है इसका। तो इसको तो तुम अलग से लिख दो अभी फिलहाल के लिए, और बाकी वैल्यूज को एक तरफ लिख दो। अब इनको सॉल्व करो आपस में। इसका और इसका अगर तुम डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा ना। तो 10⁹ इंटू 27 इंटू 45 इंटू 100, 4.5 इंटू 100 इज 45। तो 27 इंटू 450 कितना आंसर हुआ?
अब इसका प्रोडक्ट पहले लिख दो 12150 into 10 to power 9। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। तो तुमने कैलकुलेट कर दिया कि कितनी फोर्स है। अभी फिलहाल मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, अदरवाइज तुम्हें 1 डेसिमल तक लाना पड़ता है इसको, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो अगर तुम इसको 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लाओगे तो बाय डिफॉल्ट अभी डेसिमल यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव किया तो 4 ऊपर ऐड हो गया। ये स्टेप समझ आया लास्ट वाला या नहीं आया? यस सर। ठीक है, इस तरीके से हम, ये तो हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी सॉल्व इट एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द वैल्यूज। अदरवाइज यहाँ जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी सी फिर और डिफिकल्ट टाइप आ जाती है, माइक्रोकूलम, मिली कूलम, वो प्रीफिक्सेस तुम्हें याद है ना, मिली और माइक्रो वाले, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो ज्यादातर तुम्हें ये 3 ही यूज होंगे, इन तीनों की वैल्यू लिख लेना। 1 मिली इज 10 to power -3 and 1 micro is 10 to power -6, nano is 10 to power -9. This is milli, this is micro, this is nano.